Hello and welcome children to social studies class. In our today's class, we are going to continue with chapter 5 of civics, how we govern our communities. This chapter is all about the local self-government. Before continuing the second part of this chapter, we will recall the first part of the chapter. So in this chapter we will study about local self-government. In the first part we had studied about the rural local self-government. Rural यानी village area, remote areas. Okay, so we had studied about the rural village government and the administration. So under rural administration, under the rural government, we studied about Gram Panchayat, Gram Sabha, Nyay Sabha, Block Samiti, Zilla Parishad. Okay, we studied how Panch are elected, how Sarpanch is elected. Okay, what are the powers of Gram Sabha, functions of Panchayat and sources of income of Panchayat. Right, we also studied about the advantages of local self-government. So after studying about the local self-government, we will study about the urban administration and urban self-government. In urban self-government, urban local self-government, this is the government formed under the urban areas, okay, of towns, city or district. Okay, this kind of local self-government is formed in town, city or district. First we will study about the municipality. Okay, municipalities. Urban local self-government are called municipalities. Okay, so the self-government bodies of urban local areas are called municipalities. In India, there are three main types of municipalities. There are three main type of municipalities. Semi-urban areas, that is areas that are gradually changing from rural to urban. Okay, that are semi-urban, means they are not completely urban and modernized, but they are not backwards or they are not rural. Okay, so semi-urban areas that are changing from rural to urban have nagar panchayats. ओके, तो म्यूनसिपैलिटीज़ भी तीन टाइप की होती है, मतलब तीन तरीके से तीन एरिया के हिसाब से होती है. पहला है सेमी अर्बन एरियाज, जहाँ पर होता है नगर पंचायत. ओके, सेमी अर्बन एरियाज हैव नगर पंचायत. Cities with a population of less than 10 lakh have municipal councils. ओके, सो सिटी जहाँ पर पॉपुलेशन कितनी है 10 लाख से कम है, ठीक है, वहाँ पर लोग 10 लाख से कम है, जहाँ जो सिटी की स्ट्रेंथ यानी नंबर ऑफ पीपल लिविंग देयर are less than 10 lakh, that kind of city will have municipal councils. And the cities with a larger population, okay, have municipal corporation, यानी जहाँ पर पॉपुलेशन 10 लाख से भी ज़्यादा होगी. ओके, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होगी. Big cities have municipal
corporation. In this chapter, you will study about municipal corporation. म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कंपोजिशन यानी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में कौन कौन होते हैं. ओके, हु इज इंक्लूडेड इन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन. सो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बिग सिटीज़ में होती है. ओके, बिग सिटीज़ हैव म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एज their local self-government body. The municipal corporation have members elected by registered voters of the city. Municipal corporation में ऐसे members होते हैं जो सिटी की पब्लिक ने वोट देकर उन्हें इलेक्ट किया हो. Those who are 21 years of age or above may stand for election. अच्छा, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन के लिए कौन खड़ा हो सकता है? Who can be eligible or who can participate, contest in municipal corporation? Those who are 21 years of age or above may stand for election. तो जो 21 ईयर्स का है सिटीज़न या 21 ईयर्स से बड़ा है. ओके, सो नॉट लेस देन 21. ओके, 21 से छोटा नहीं होना चाहिए. जो भी कैंडिडेट है, जो भी इलेक्शन में जो व्यक्ति खड़ा रहना चाहता है, पार्टिसिपेट करना चाहता है, वो 21 ईयर्स या उससे ज़्यादा की एज का होना चाहिए. फॉर म्यूनिसिपल इलेक्शन the city is divided into small areas called wards. Okay, in the previous chapter I had explained you that city is divided into smaller units, smaller areas called wards. Each ward elects one representative. हर एक वार्ड में जब इलेक्शन होगा तो हर एक वार्ड में से एक एक रिप्रेजेंटेटिव चुना जाएगा. यूजुअली कॉल्ड द काउंसिलर. उसे क्या कहते हैं? काउंसिलर कहते हैं. ठीक है, जो चूज होके सिलेक्ट हो गया है, इलेक्ट हो गया है, जीत गया है, वो अभी उसको क्या कहेंगे? काउंसिलर. सम सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, scheduled tribes, other backward classes and women. तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में भी कुछ सीट्स रिजर्व्ड है यानी उन कैटेगरी के लोगों को ही वो सीट मिलनी चाहिए. ओके, सो दैट आर रिजर्व्ड फॉर ST, SC, बैकवर्ड क्लास एंड वुमन. वुमन के लिए 1/3 सीट्स जो है वो रिजर्व्ड है. अपार्ट फ्रॉम दिस द MPs एंड MLAs. ओके, MPs यानी क्या? मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट. एंड MLAs मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली फ्रॉम द सिटी बिकम द मेंबर्स ऑफ कॉरपोरेशन. सम डिस्टिंग्विश्ड रेसिडेंट्स ऑफ सिटी आर अपॉइंटेड एज मेंबर्स. सम डिस्टिंग्विश्ड रेसिडेंट्स यानी यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि इलेक्शन हो गया, मेंबर्स जो है वो सिलेक्ट हो गए हैं, इलेक्ट हो गए हैं. ओके, सो मेंबर्स ने जो है वो कॉरपोरेशन बना लिया है. बट वो लोग हैं वो जो जाने माने पॉपुलर और काम करने वाले जो लोग होते हैं. ओके, वॉलंटरीली जो काम करते हैं, जो बहुत पॉपुलर होते हैं सिटी में, उन लोगों को ये चूज़ करते हैं और वो चूज़ करते हैं और कमेटी बनाते हैं. और ऐसे लोगों को जिनको मेंबर्स ऑफ म्यूनिसिपैलिटी चूज़ करते हैं वो होते हैं एल्डरमैन. ओके, the members of the corporation
elect a presiding officer called mayor. अभी इलेक्शन हो गए, हर एक वार्ड में से एक रिप्रेजेंटेटिव है वो हमने चूज़ किया, ठीक है। तो मेंबर्स ऑफ कॉरपोरेशन, जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स हमने चूज़ किए हैं, वो लोग आपस में एक मेयर को सिलेक्ट करेंगे, एक रिप्रेजेंटेटिव को मेयर बनाएंगे। ओके, सो मेयर और डेप्यूटी मेयर, ये दो पोस्ट वो लोग आपस में मेजॉरिटी में सिलेक्ट करेंगे मेयर और डेप्यूटी मेयर को। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस आर फॉर्म्ड फॉर अ टर्म ऑफ 5 years। ओके, सो एक बार जो हम रिप्रेजेंटेटिव को वोट कर रहे हैं वो 5 years के लिए इन फोर्स रहने वाला है। इफ देर इज नो प्रॉब्लम, ओके, इफ he or she is not having problem, or if we are not facing any problem or complaint, okay, so if everything is going well, he will continue for the term of 5 years. The functions of municipal corporation are carried out through various committees which look after different areas like health, education, water, supply, etc. Okay, here see, city is very big, right? Population is there in the city compared to village, so administration should be strong, right? So many members are elected, and that members form groups and make committees. Even the aldermen which they have selected, which they have chosen from the public, okay, from the public, they will also form the committee. And this committees, ये जो ग्रुप है उनको अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज उनको एलोकेशन मिलेगा। ओके, सम विल बी गिवन हेल्थ department, some will be given education, some will be given water supply. So all the duties are there, they will be divided among the committees, right? Now mayor is the head of the municipal corporation, and he will look after all the committees and maintain the work. Other than this, the state government appoints an officer called municipal commissioner. ठीक है, मेयर तो ध्यान रखेगा, बट गवर्नमेंट भी एक एम्प्लॉय यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को भेजेंगे. द गवर्नमेंट विल ऑल्सो अपॉइंट एन ऑफिसर, सिविल ऑफिसर called municipal commissioner to look after the functioning of the corporation. The officer in charge of various departments like education, health, engineering, sanitation, etc. assist him. अभी ऑफिसर्स थे जो अलग अलग ऑफिसर्स भी उनके अंडर में काम करेंगे, ठीक है, तो वो भी अलग अलग डिपार्टमेंट के होंगे. कमिटीज़ भी काम कर रही है तो वो सब मिलकर कमिश्नर की हेल्प करेंगे, और कमिश्नर है वो सब फंक्शनिंग को सुपरवाइज करेंगे. ओके, अरेंजमेंट्स करेंगे, सब कुछ अच्छे से चले उनका अरेंजमेंट करेंगे. नाउ फंक्शंस ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन. म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के क्या क्या फंक्शंस है, वो हमारे लिए क्या क्या करते हैं. The municipal corporation arranges for clearing away the garbage and maintenance of drainage system. ठीक है, this is very important function. It maintains the cleanliness and removes the wastage, यानी वो dispose करते हैं wastage को. You know there is lot of trash from each individual's house
and on the public places and on the pathways. Okay, there is lot of trash and wastage. So the municipal corporation arranges for clearing this garbage and maintenance of drainage system. तो जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम है, ठीक है, हैविंग द पाइपलाइंस एंड हैविंग द गटर लाइंस एंड ऑल, सो उसका मेंटेनेंस भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन करता है, ठीक है। उसके अलावा जो हमारे घर रोज जो वैन आती है, ट्रक आता है, ठीक है, जिसमें वो कचरा ले जाते हैं, तो वो कचरा ले जाने का काम उसको अरेंज करने का, कचरे को कचरे का रिमूवल करने का या डिस्पोजल करने का, ये सारी फैसिलिटी है वो हमें म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से मिलती है। यूजुअली एवरी नेबरहुड हैज़ अ कलेक्शन पॉइंट वेयर द रेसिडेंट्स डंप देयर गार्बेज। ओके, सोसाइटी वाइज या तो एक कॉलोनी वाइज आप लोगों के पास गार्बेज के, वेस्टेज के डस्टबिन्स होंगे, जिसमें आप अपना अपना डस्टबिन में आप अपना अपना घर से गार्बेज डालोगे, ठीक है, वेस्टेज डालोगे, और वो वेस्टेज है वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में जो एम्प्लॉय काम करता होगा वो लेके जाएगा, राइट। सो आपने अपना अपना घर का कचरा वगैरह जो भी वेस्टेज था आपने डाल दिया, राइट, डस्टबिन के अंदर। नाउ हु विल टेक अवे दैट द वेस्टेज फ्रॉम द डस्टबिन? द एम्प्लॉय, द वर्कर ऑफ द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। Every day garbage collection truck will come, some person from municipal workers will come, okay, and take away the waste, ठीक है। रोज़ कोई ना कोई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से जो वर्कर्स होते हैं वो आते हैं और गार्बेज, जो कचरा कूड़ा होता है, वो सब ले जाते हैं, ठीक है। दे आर कमिंग द फिक्स्ड टाइम, दैट इज़ एवरी डे, ओके। A collection point may have separate dustbin for biodegradable garbage। तो हमने ऑब्जर्व किया है कि काफ़ी बार दो टाइप के डस्टबिन्स होते हैं, ग्रीन एंड ब्लू, ठीक है। फॉर वेट गार्बेज यू हैव टू मेंटेन अदर डस्टबिन एंड फॉर द ड्राई गार्बेज यू हैव टू मेंटेन अनदर डस्टबिन, ठीक है। तो सूखे और गीले ऐसे दो टाइप के कचरे होते हैं, राइट। तो दोनों के लिए हमें अलग अलग में डालना होता है, विच कैन बी डिस्पोज्ड ऑफ विदाउट हार्मिंग द एनवायरमेंट एंड रिसाइकल गार्बेज विच कैन बी यूज टू सेव रिसोर्सेज। तो अभी कुछ ऐसा होता है कि जिसे हम वापस रिसाइकल कर सकते हैं। तो अगर बाइफरकेट किया हुआ होगा, अगर वेस्टेज है वो हमारा प्रॉपरली बाइफरकेट किया हुआ होगा, तो उसका डिस्पोजल है वो इजीली होगा, और जो रिसाइकलेबल है वो रिसाइकल भी हम कर पाएंगे, ठीक है। अल्टीमेटली क्या होगा कि हमारे रिसोर्सेज जो है उसकी भी बचत होगी। सो इट इज़ वेरी इफेक्टिव इफ़ वी मेंटेन द different bifurcated dustbins for different kinds of wastage. The garbage collected at the collection point is carried away by municipal trucks at regular intervals. The municipal corporation should ensure that the collected garbage is disposed of in a proper, suitable manner. The first point is the municipal corporation looks after the public health by running dispensaries and hospitals. It also checks the adulteration of food. Means
The municipal corporation looks after the public health. Okay, it provides the facilities of campaigns of vaccination. It also has health centers. Okay, it also has health centers. It opens hospitals, medical centers where qualified people, qualified doctors, nurses are employed. It checks on the food adulteration. Food adulteration यानी फूड में अगर मिलावट हो तो, right? You might have observed that many a times the customer is provided low quality or mixed up product, okay, and promised the best quality. Okay, the price is taken of the best quality, and in return the customer is given adulterated thing. Okay, example, the customer is provided with rice, but rice is having many stones in it. ओके, तो वेट में 1 kg राइस दिया, बट उसमें कितने सारे स्टोन्स अगर बहुत सारे हैं, या तो फिर राइस जो है उसमें कुछ ना कुछ मिलावट है, कोई भी दूसरी चीज़ में भी मिलावट है, तो वो मिलावट या जो अनहाइजीनिक, अनएडिबल, इनएडिबल चीज़ें अगर यूज़ करते हैं, ठीक है, तो वो भी, उस पर भी कौन ध्यान रखता है? म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन. इट अरेंजेस फॉर ड्रिंकिंग वाटर सप्लाईज. ठीक है, पानी, पीने के पानी की अरेंजमेंट करते हैं. ओके, हाउ वाटर इज रीच्ड टू अस? इट इज रीचिंग टू अस ड्यू टू द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन. साफ, अच्छा, स्वच्छ पीने लायक पानी हम लोग को मिलता है बिकॉज ऑफ द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन. वो किस बात का ध्यान रखते हैं? स्ट्रीट लाइट. ओके, वो क्या मेंटेन करते हैं? स्ट्रीट लाइट भी मेंटेन करते हैं. जैसे ही शाम होती है स्ट्रीट लाइट ऑन होती है, और इन द मॉर्निंग टिल 6:30 और 7 o'clock. ओके, नॉट इन समर बट एट करंट टाइम 6:30 तक वो स्ट्रीट लाइट 6 o'clock तक ऑन होती है. सो इट टेक्स केयर ऑफ द लाइटिंग, स्ट्रीट लाइट. ओके, उसमें स्ट्रीट लाइट लगाना, उसको मेंटेन करना, उसकी स्विच टाइम पे ऑन करना, ऑफ करना, अगर लाइट ख़राब हो रही है तो उसे चेंज करना. ठीक है, ये सारा काम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन करती है. इट में ऑल्सो मेक अरेंजमेंट फॉर फायर फाइटिंग, यानी फायर ब्रिगेड. ओके, फायर ब्रिगेड या कोई डिज़ास्टर होगा तब भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अपने एंड पे हेल्प करेगी. ठीक है, द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन रिकॉर्ड्स बर्थ एंड डेथ. ओके, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अपनी सिटी में, उनकी सिटी में जो भी बर्थ हो रहे हैं या जो भी डेथ हो रही है उसका रिकॉर्ड भी वो मेंटेन करती है. म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन also records the birth and death and issues the certificate of birth and death. It maintains graveyards, cremation grounds and electric crematoriums. यानी क्रीमेशन ग्राउंड क्या होता है? जहाँ हम अग्नि संस्कार करते हैं, राइट? कोई ऑफ हो जाता है तो उसका अग्नि संस्कार होता है एज पर द हिंदू रिलीजियस. ओके, हिंदू रिलीजियस एक्ट के हिसाब से उसका अंतिम संस्कार होता है, राइट? उसे अग्नि दाह देते हैं. और बाकी हम देखते हैं कि एज पर द अदर कास्ट में भी, लाइक मुस्लिम और लाइक क्रिश्चियंस, उन्हें ग्रेव यार्ड्स में उन जो ऑफ हो जाते हैं उन्हें ग्रेव यार्ड्स में वो लोग बरी करते हैं. So taking care of burials, graveyards, cremation grounds और इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम, यानी इलेक्ट्रिक से भी अभी आजकल जो है वो अंतिम संस्कार कर रहे हैं. सो
All these duties are of municipal corporation. These all facilities we are getting, and who is giving? Municipal corporation is giving all these facilities to us. The municipal corporation may run its own school and help maintain public library, museum, park and zoo. ठीक है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है वो जो गवर्नमेंट स्कूल होता है, ठीक है, उसका मेंटेनेंस भी करती है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, जो उसके इस स्कूल का मेंटेनेंस भी करती है, और पब्लिक लाइब्रेरी, म्यूजियम, गार्डन, जू, पार्क, इन सब के मेंटेनेंस का भी ध्यान रखती है. The municipal corporation provides and maintains public utilities such as markets, roads, bridges, public toilets, etc. म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और क्या बनाती या मेंटेन करती है? वो मेंटेन करती है मार्केट्स, जहाँ पर फ्रूट, वेजिटेबल्स, ऐसी चीज़ें हमें इजीली मिल सके, ठीक है. बाकी रोड्स कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, रोड्स का, ब्रिजेस का, फ्लाईओवर्स का, पब्लिक टॉयलेट्स का, ठीक है. उसके अलावा उसे मेंटेन भी करते हैं, ठीक है, रिपेयरिंग वर्क भी उसका करते हैं. सो ऑल दिस ड्यूटीज, ऑल दिस फंक्शंस, और वी कैन से फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड बाय म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन. सो इन दिस पिक्चर यू कैन सी दैट एक वर्कर है, म्यूनिसिपैलिटी का एक वर्कर है, ठीक है. वो ट्रक में डस्टबिन में से कचरा लेकर डस्टबिन में से वो वेस्टेज ट्रक में डाल रहा है, वेस्टेज उसमें डाल रहा है, और रोज़ ये आके अपने घर का, कॉलोनी का वेस्टेज लेके जाते हैं. ओके, you also know that one van or truck is coming and taking away the garbage. Okay, the song is also playing. वो जब आते हैं ना तो उनका सॉन्ग बजता है, स्वच्छ भारत का अभियान. ओके, इरादा कर लिया मैंने, देश से अपने वादा कर लिया मैंने. ऑल दैट सॉन्ग इज ऑल्सो बीइंग प्लेड. ओके, तो अगर कोई अपने घर से, जिनका भाई प्राइवेट है, तो वो अपने घर से डस्टबिन है वो अगर नहीं रखा हो बाहर तो वो लोग रखें, ठीक है, या अपना है वो डंप करके जाए. तो ये फैसिलिटी है वो हमें म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन प्रोवाइड करती है. फिर अगर वाटर शॉर्टेज होती है तो म्यूनिसिपलिटी हमें वाटर टैंक्स की फैसिलिटी भी अवेलेबल करवाती है. ओके, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है वो हमें वाटर फैसिलिटी, वाटर सप्लाई फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती है. फिर क्रेमेशन ग्राउंड भी मेंटेन करती है. जैसे मैंने बोला, कोई एक्सपायर हो जाता है, ऑफ हो जाता है, तो उससे उनका अग्नि संस्कार होता है, अंतिम संस्कार होता है, तो उसके लिए भी ये क्रेमेशन ग्राउंड मेंटेन करते हैं. फिर जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है वो गार्डन को मेंटेन करती है, ठीक है. पब्लिक गार्डन्स है अपने भावनगर में तो बहुत सारे हैं, ठीक है, तो उसको मेंटेन कौन करता है? म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन. सिटी को ब्यूटीफाई भी करते हैं. ओके, आपने देखा होगा कि वॉल्स पे अलग अलग अच्छे अच्छे थॉट्स वाले और अच्छे पेंटिंग वाले आपने देखा होगा कि वॉल पे बना हुआ होता है, राइट. दैट इज़ यूज टू ब्यूटीफाई आवर सिटी. सो वैसी एक्टिविटीज़ भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन करवाती है, राइट. जैसे आपने कहीं सर्कल्स पे या आपने देखा होगा विक्टोरिया पार्क के वॉल पे आपने देखा होगा कि वहाँ पर सेव गर्ल चाइल्ड, प्लांट मोर ट्रीज, और ऐसी सारी अच्छे मैसेज वाली वॉल पेंटिंग्स किया होता है, वॉल पे पेंट किया होता है, राइट. सो ये सारा भी ब्यूटिफिकेशन है सिटी का, ठीक है. तो वो ब्यूटिफिकेशन भी करते हैं.
फिर जब एस्टैब्लिशमेंट डे होता है तो कुछ लाइटिंग्स वगैरह भी वो लोग लगाते हैं. ओके, सो ये सजावट भी करते हैं. सो ऑल दिस एक्टिविटीज़, ऑल दिस फैसिलिटीज़ आर गिवन बाय म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन. So even street lights and city lights are maintained by municipal corporation. Okay, drainage system is maintained by municipal corporation. These are the obligatory, that is the compulsory functions of municipal corporation, which includes public health, sanitation, electricity, water supply, education, sports, public welfare works, infrastructure works like building of bridges, roads, and development, etc., birth and death records, miscellaneous function, that is fire brigade. Okay, fire brigade and burial grounds, graveyards, etc. So these are the compulsory functions and the facilities that they have to give us. To give us so many facilities to administer and manage the city and do all the works, they also need fund, right? So what are their sources of fund? What are their sources of income? Okay, how do they get money to to manage all these things? They get fund. The municipal corporation gets fund or money from tax, fees and government grants. ओके, अलग अलग टैक्स है वो हम लोग डे टू डे लाइफ में भरते हैं. ओके, विच आर लाइक ऑक्ट्रॉय ड्यूटी, टोल टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, वाटर टैक्स, हाउस टैक्स, गुड्स और एनिमल टैक्स. ठीक है. ऑक्ट्रॉय टैक्स क्या है? ऑक्ट्रॉय ड्यूटी क्या है? ये ड्यूटी है जो अगर हम गुड्स इनटेक करते हैं या गुड्स को हम लोग सेल करते हैं, तो इफ़ दे आर आउट गोइंग और द गुड्स आर इनकमिंग, वी हैव टू पे द ऑक्ट्रॉय ड्यूटी. देन हाउस टैक्स. ओके, if we are having the ownership of house, then as per the fixed standard we have to pay the house tax. Okay, then water tax, we have to pay water tax because we are getting water, safe drinking water is being provided. We have to pay profession tax if we are giving some professional service. अगर डॉक्टर है, लॉयर है या टीचर है, वी कैन से टीचर तो है ही, और या तो फिर कोई एक इंस्टीट्यूट है एजुकेशनल, तो वो सब कौन से टैक्सेस पे करते हैं? वो लोग पे करते हैं प्रोफेशनल टैक्स. एंटरटेनमेंट टैक्स वो आप पे करते हो. ठीक है, आप जब मूवी देखने जाते हो थिएटर, सिनेमा थिएटर में, ठीक है, सिनेमा हॉल में, तो जो आप टिकट परचेज करते हो वो टिकट में एनवायरमेंट टैक्स भी इंक्लूडेड होता है. फिर आप वैट भरते हो, काफ़ी जगह बिल भरने में आप वैट भरते हो या तो जीएसटी भरते हो. तो ये सारे टैक्सेस हम लोग भरते हैं, और ये सारे टैक्सेस जो हम भरते हैं उस टैक्सेस से उन्हें फंड मिलता है. इट इज़ टैक्स फॉर अस एंड इट इज़ द सोर्स ऑफ इनकम फॉर म्यूनसिपलिटी, फॉर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एंड फॉर गवर्नमेंट. ठीक है, सो ये सारे उन्हें मनी कहाँ से मिलती है? हमारे टैक्सेस और फी में से. और स्टेट गवर्नमेंट यानी हायर लेवल गवर्नमेंट भी उन्हें ग्रांट और पैसे भेजती है. सो ऐसे उनको पैसे मिलते हैं. ठीक है. इट कलेक्ट्स प्रॉपर्टी टैक्स फ्रॉम द हाउस वी ओन, म्यूनसिपल टैक्स फ्रॉम बिजनेस. ठीक है, दुकान वगैरह पे जो बिजनेस चलाते हैं वो लोग भी टैक्स भरते हैं. ठीक है, तो बिजनेस में भी टैक्स भरना पड़ता है. अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो, अगर आप कुछ खरीद रहे हो तो भी आपको टैक्स भरना पड़ता है. जब कुछ बेच रहे हो तब भी टैक्स भरना पड़ता है. कुछ आप
पानी यूज़ कर रहे हो तो आपको टैक्स भरना है, ठीक है। कुछ भी कर रहे हो आप, एंटरटेनमेंट के लिए जा रहे हो तो भी आपको टैक्स भरना है. सो टैक्स वी हैव टू पे, एंड फ्रॉम आवर टैक्स they are providing us the facilities. Okay, the civic amenities are provided by the fund the government and the municipality has. Understood? So it also collects tax on non-motorized vehicles like cycle and rickshaw. In some cities, it collects toll on certain roads and bridges, and a tax called octroi on goods entering the city. अगर goods city के अंदर आ रहे हैं, ठीक है, तो भी वो लोग टोल टैक्स लेते हैं, ऑक्ट्रॉय टैक्स लेते हैं, ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दिस, इट चार्जेस फीस फॉर इशूइंग बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट. अगर किसी की डेथ या किसी का बर्थ हम रिपोर्ट करते हैं वहाँ पे, ठीक है, कि हमारी फैमिली में ये बर्थ हुआ है, ओके, न्यू मेंबर इज एडेड टू अवर फैमिली. So to give the birth certificate and to enter the name also they take money, and that is compulsory. हमें registration करवाना compulsory है. So they are having the sources of income from us and they are providing the facility to us. So when we know that they are using our money, okay, they are taking the tax and giving the benefit. So ultimately what we have to understand, we have to understand that we should try to prevent the misuse. okay, indirectly हमें टैक्स तो पे करना ही है, बट वो टैक्स अगर हम मिसयूज़ करेंगे, कोई फैसिलिटी का हम मिसयूज़ करेंगे, तो क्या होगा कि हमें और फैसिलिटी नहीं मिलेगी, ठीक है. यानी कि अगर हम लोग टैक्स पे कर रहे हैं, टैक्स उनको मिल रहा है, टैक्स में से ही वो सारे एक्सपेंस मैनेज कर रहे हैं, तो अगर हम एक्सपेंस उनका ये सोच के हम लोग जो है एमिनिटीज़ का मिसयूज़ करें कि वैसे भी हम तो टैक्स भर रहे हैं, तो क्यों ना हम इसको अपने हिसाब से चले, ठीक है. वी थ्रो गार्बेज ऑन रोड एंड वी destroy the public properties, then what will happen? Ultimately our own money will be used again and again for the same thing. So हमें क्या करना है, अगर हम नहीं करेंगे तो भी मनी हमारे लिए ही यूज़ करेंगे, बट अगर हम मिसयूज़ नहीं करेंगे तो हमारा और बेटरमेंट होगा, डेवलपमेंट विल बी मोर. ओके, सो वी शुड नॉट misuse amenities. Also we have to select and elect the representative to enable the local bodies to serve us better. और हमें क्या करना है, अच्छे से अच्छे रिप्रेजेंटेटिव को वोट देकर हमें उसे इलेक्ट करना है, ताकि हमारा जो सिस्टम है, हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, वो अच्छे से चलता रहे, हमारे लिए जो काम करे, पब्लिक के लिए काम करे, वैसे अच्छे हम बोल सकते हैं वैसे अच्छे वार्ड एडमिनिस्ट्रेशन को हमें वोट करना है, ठीक है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक. ओके, रीड द चैप्टर. ओके, आई सजेस्ट यू टू रीड द चैप्टर, to relate the chapter with your life, okay, with the happenings around you, so that you can enjoy the chapter. सिर्फ बुक तक ही इस चैप्टर को या कोई भी चैप्टर को आप लिमिटेड मत रखो, आप उसे रिलेट करो, ठीक है. ये सारी प्रैक्टिकल बातें हैं, तो आप उसे रिलेट करो और चैप्टर को एन्जॉय करो. आप रीड करोगे, रिलेट करोगे ना, so you will enjoy. Okay, so you have to read the chapter, and your today's homework is you have to find out who is the mayor of our district. Okay, who is the mayor, and you also have to find out that
how many wards are there in our district. Okay, what you have to find out that who is our ward councillor and who is the mayor. ठीक है, आपको ये तो फाइंड करना ही है कि हु इज़ द मेयर ऑफ आवर सिटी, हु इज़ द डेप्यूटी मेयर. ओके, ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा रिसर्च करना है, थोड़ा अपने पेरेंट्स को पूछना है, राइट. सो दिस इज़ योर होमवर्क. ओके चिल्ड्रन, बाय, टेक केयर.